Hello student, this is part 2 of chapter 6, that is line and angles. In this video we are going to discuss some more questions related to the properties of parallel lines. Okay, what are the rules? Can anybody have remembered? Yes, corresponding angles, alternate interior angles, co-interior angles. These all things we have already read in first exercise. Now these all rules are applicable here, and now we are going to start this exercise. So today's first question is, in figure find the value of x and y and then show that the lines are parallel. Means these lines are not parallel. You have to prove whether these lines are parallel or not. But they said show that. That means they have already parallel, but you have to show. If they will check, verify this, then also if they will say check whether it is not, then there is a condition ki maybe they are not parallel. But now question is show that. That means already they are parallel, but you have to prove this. Okay. Now statement you are having. Find the values of x and y, show that the lines are parallel also. So this is angle 1 and 2. Here angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degrees. What's the reason? Linear pair. This is straight line. So angle 1 plus 2 is 180. That means linear pair. Angle 150, 2 is x. So what is your x? 180 minus 50. That is 130 degrees. So that means your x is 130 degree. X or angle x, both are same thing. Okay, now this is 3 and this is 4. Angle 3 is equals to angle 4 is equals to 130 degree. Reason is vertical opposite angle. That means angle y, this is also 130 because angle y is 4. अब आपने क्या देखा कि जो एंगल x था that is also 130, y is also 130, but they form alternate interior angles. आप यहाँ पे ऐसे ही मेंशन कर सकते हो. Here angle x is equals to angle y is equals to 130 degree, but they form alternate interior angles. Alternate interior angles क्या होते हैं? जब दो lines z बनाएं, like this angle and this angle both are equal. So hence AB is parallel to CD. इसलिए AB और CD क्या हैं? दोनों आपस में parallel. Is it clear? So now next question. Question is in figure, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, y ratio z is 3:7, find the value of x. Yes, if this is angle 1, this is angle 2, 1 and 2 are solution. This is your to proof and this is your given. क्या होता है given to proof? Already I told you what the meaning of this. Given means जो चीज़ हमें given है, to prove means जो हमें find करना है. Okay, so solution. Angle 1 and 2 both are corresponding angle. Here angle 1 is equals to angle 2 is equals to z. Reason is corresponding angles. Corresponding angles की सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने क्या दी थी? जैसे हम बस की सीट पे बैठे होते हैं, आगे पीछे बैठे हैं, तो मीन्स हम एक दूसरे क्या होते हैं? corresponding. Now this means this one also z. So here angle y plus z is equals to 180. ये क्या बना रहे हैं? linear pair. What they are forming? linear pair. Let y क्या हो गया हमारे पास? 3x dash, z is 7x dash. Why I have taken x dash? Because x हमारे पास already है. अगर हम x लेंगे तो वो mistake count होगी. Okay, so what it form? 3x dash plus 7x dash is equals to 180. 10x dash is equals to 180. So what is your x dash? 180 upon 10. That means 18 degree. Now angle y is equals to 3x dash. Angle z is equals to 7x dash. 3 into 18, 54 degree. 7 into 18, 126 degree. अब आपके पास y भी है और z भी है. Look at here, angle y, x and z both are equal. What's the reason? Alternate interior angles. ये z बना रहे हैं, देखो x और z. इसको भी बोल सकते हो z और ये भी बना रहे हैं, जो मर्जी काउंट कर लो, दोनों में सेम है. एंगल x किसके इक्वल है? z के. तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले अगर ये z है तो ये भी z हो गया. फिर y और z लीनियर पेयर. y और z फाइंड कर लिया हमने. एक आया 54, एक 126. अब x और z क्या बन रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर. अगर x z 126 है तो x भी क्या हो गया? 126. तो क्वेश्चन यही था कि फाइंड x. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू SG and angle RSG, that is 130, PQR is 110. We have to find out angle QRS. This is our target. Okay, so this is your given and this thing is your to prove.
Here you have to do one construction. Draw a line RZ parallel to SG. Draw a line RZ पैरेलल टू SG एज शोन, कि जैसा हमने फिगर में दिखाया वैसे RZ एक लाइन ड्रॉ कर दो। हो गया। अब सोल्यूशन के लिए देखो, आपको ये दिख रहा है दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल 1 और 2 क्या हो गए? को इंटीरियर एंगल्स। रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर मीन्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हो। एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, तो सेम को इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 आपके पास 130 है, तो 2 कितना आ गया? 180 माइनस 130, दैट मीन्स 50 डिग्री। नाउ दिस इज एंगल 3, दिस फुल एंगल इज एंगल 4। हेयर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये कौन से Z बना रहे हैं, तो दैट मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Suppose this is angle 5. This small angle is your angle 5. Also angle 4 is equals to angle 5 plus angle 2. Angle 4 आपके पास आया 110, 5 आपको फाइंड आउट करना है। 2 कितना आ चुका आपके पास? 50 डिग्री। तो एंगल 5 is equals to 110 minus 50 degree. So it becomes 60 degree. So your angle 5, or you can say angle QRS is equals to 60 डिग्री। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्या किया हमने? इनको को इंटीरियर लिया, 180 में से 130 किया 50, फिर ये Z बना रहे हैं। अगर ये 110 है तो पूरा का पूरा 110 है, तो 110 में से 50 किया, कितना रह गया? 60। सो योर QRS इज 60 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर PQ एंड RS आर द टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। ये दो मिरर हैं PQ RS जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। इस चीज़ के शेडेड साइड का मतलब कि लाइट इससे बाहर नहीं जा सकती, यहाँ से टकरा के टर्न हो जाएगी। इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा जो रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रे जितने एंगल पे आते हैं उतने पे ही मुड़ती है। ये इंसिडेंट रे आई, आके मुड़ गई, फिर अगेन इस मिरर से टकराई, फिर मुड़ गई। ऐसे क्या हुआ? पहले PQ को टकराई B पे, फिर वो आगे चले के रिफ्लेक्टेड रे BC पे किसको टकराई? RS पे किसको टकराई? वो रे BC रे कौन से पॉइंट पे? C पे, और फिर अगेन रिफ्लेक्ट होके चली गई RS पे C पॉइंट से, और क्या बन गई? CD पाथ फॉलो कर लिया उसने। हमने प्रूव करना है कि ये AB जो लाइन है ये किसके पैरेलल है? CD के। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले गिवन, तो ये सब आपका क्या हो गया? गिवन। और ये चीज़ आपके केस में आ गई टू प्रूफ। इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। व्हाट्स अ कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ ए लाइन, क्या लिखेंगे आप? बट यू हैव टू राइट ड्रॉ ए लाइन BM perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS such that BM is parallel to CN। क्या कहा उसने? कि आपने एक BM लाइन ड्रॉ की जो परपेंडिकुलर है किस पे? PQ पे। ऐसे CN परपेंडिकुलर किस पे? RS पे। इस तरह पैरेलल करो, ड्रॉ करो परपेंडिकुलर कि दोनों आपस में क्या हो? पैरेलल। क्लियर कंस्ट्रक्शन? नाउ सोल्यूशन। हमने फिजिक्स में पढ़ा ये क्या होता है? नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। कि कोई भी रे जितने एंगल पे टकराती है उतने पे ही वापस मुड़ जाती है। सपोज 30 डिग्री पे टकराती है तो 30 पे ही वापस रिटर्न हो जाती है। यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दैट मीन्स अगर ये एंगल 1 है तो एंगल 1 और 2 बहुत क्या होंगे? इक्वल। ऐसे ही एंगल 3 है तो ये एंगल 4 मान लो, तो एंगल 3 और 4 भी क्या होंगे? इक्वल। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? हेयर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2। दोनों का रीजन क्या है? बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? कि कोई भी रे जितने एंगल पे आती है उतने पे ही वापस टर्न हो जाती है। नाउ अगर BM और CN पैरेलल है तो एंगल 2 और 3 क्या है? ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वाई? इफ एनीबडी आस्क वाई, तो आप इससे पहले लिख सकते हो एज BM इज पैरेलल टू CN। आप ये मेंशन कर सकते हो कि BM किसके पैरेलल है? CN के, इसलिए एंगल 2 और 3 क्या है? इक्वल है। सपोज दिस इज इक्वेशन 3, तो आप इसके बाद क्या लिखोगे? फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब आप तीनों को कंपेयर करो। यहाँ आपने बोला 2, 3 के इक्वल है।
अगर ये 2 और 3 इक्वल हो गए तो एंगल 1 और 4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल 1 और 4 आपके पास क्या आ गए, इक्वल। अब इसके बाद देखो आपने क्या करना है, एंगल 1 और 4 आपके पास इक्वल है, आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पूरा एंगल चाहिए ये वाला। 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4, इसको 2 बार लिख दो, ऐसे इसको 2 बार लिख दो। अब एंगल 1 किसके इक्वल था, 2 के, तो इस 1 की जगह क्या लिख दोगे आप, 2 के। ऐसे 3 किसके इक्वल था, 4, तो यहाँ पे 3 लिख दो। रीज़न दे दो यहाँ पे, बिकॉज एंगल 1 2 के इक्वल था, 3 किसके इक्वल था, 4 के। अब एंगल 1 और 2 का सम क्या बन रहा है, एंगल BAC, और ये वाला ABC, सॉरी व्हाट्स द नेम, ABC एंड इसका नेम क्या बन गया, BCD। 3 और 4 के सम को क्या बोलेंगे हम, BCD। अब आपने देखा कि बड़े एंगल आपस में इक्वल हो गए, बट ये बड़ा Z बना रहे हैं, क्या लिखेंगे हम, बट दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट दे फॉर्म ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं और इक्वल भी हैं, हेंस AB इज पैरेलल टू CD। तो ये आपका आंसर आ गया कि बड़े Z बना रहे हैं, इसलिए AB आपका किसके पैरेलल है, CD के। मीन्स ये वाला लाइन किसके पैरेलल है, इसके। ओके, दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू।